various issues are tied with the measurement, with this measurement also. The model in itself is flawed, by the way. Yes, flawed. Flawed, yes. बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, the model is flawed. क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन मॉडल है जिसको फॉलो करके उन्होंने बनाया है, and it has a technical glitch. It has a technical glitch, and that is why LSM को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 4 साल 5 साल हो रहे हैं yes. अभी तक शायद हार्डली 1-2 क्लाइंट, यूनिलीवर अपना LSM यूज़ करता है, वो LSM यूज़, हार्डली एनी क्लाइंट दैट आई नो जो LSM यूज़ करता है. 5 साल में आपका नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो रिप्लेस करना था जिसको SEC को, SEC is quite outdated now, but still SEC prevails and is being widely used. LSM is not. ठीक है जी? ओके, यहाँ तक जो हमने सारी बात की है, it is all about category. अभी तक हमने ब्रांड की कोई बात नहीं की है. Ideally, what we should do is to do UNA or HNP or CAP for the category. We should not include brand in this. B&G never used to do that. Even Unilever never used to do that. सर एंड में बिल्कुल जो डीप डाइव के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल एंड में आते हैं. बिल्कुल एंड में आप एक आध ब्रांड का क्वेश्चन पूछ लेते, बट वो भी इन जनरल इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक. बिकॉज ये लेंथ ऑलरेडी इतनी हो जाती है कि आप एक सेटिंग में कंज्यूमर से वो सारी इंफॉर्मेशन और ब्रांड के बारे में भी नहीं ले सकते. इसलिए इट इज रिकमेंडेड दैट यू डू just category, users, non-users, whatever, and you cover your 5 W's and 2 H and attitude, that's it. But अब जो prevalent situation है उसमें जो economic आपके ऊपर burdens हैं और economic pressures हैं, majority of the companies, ठीक है, majority of the companies basically try to do a brand audit along with UNA. So you will seldom see UNA which is without brand health check. तो उसमें brand health check जो है वो definitely integrate कर देते हैं. Brand health में primarily आपको इसके साथ क्या ऐड करना पड़ता है? Brand awareness की grid, यानी awareness में क्या क्या चीजें होती हैं brand awareness में? युमना. When it's spontaneous. Spontaneous what? Like when we talk about specific brand names, so like what is spontaneous thing that come to your mind? कह सकते हैं. Not the exact definition. Anyone else would like to try? वगैरह क्या है? Share of mind or share of mind क्या चीज़ होती है? Again, Tom आपको तब मैं spontaneous awareness है कि total awareness आपका overall gauge कर देते हैं. Then goes with the share of pocket जिसके साथ कभी भी ever use किया है, recently retention कितनी है and frequently why है, ये सब चीज़ें brand ठीक. As a one. Okay. There is also same difference. So when it comes to brand health check, it includes, देखो हमेशा याद रखना कि brand awareness and usage के particular 6 सवाल या 7 सवाल जो आपने पूछने हैं, ठीक है, और वो उसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं. जब मैं टिश्यू पेपर की बात करता हूँ तो आपके ध्यान में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? ठीक है, this is Tom. Spontaneous, but spontaneous is broken down into 2. First response is Tom, top of mind. Top of mind is what? Top of mind. The frontal lobe is responsible to trigger purchase. That is why it is important for any brand, ये बात याद रखिएगा please. Why it is important to have top of mind measured separately? Because top of mind is responsible to trigger purchase at the time of purchase decision. It is responsible to trigger purchase. It is often validated through various and several researches that top of mind and current brand usage has very high correlation. When top of mind goes up, the brand usage goes up.
When top of mind goes down, the brand usage also goes down. Clear है बात? तो this is your frontal lobe, ये top of mind है. Then comes इसके अलावा और कौन-कौन से ब्रांड? पहला सवाल मैंने क्या किया था? सबसे पहले जब मैं आपसे कैटेगरी X टिश्यू पेपर की बात करता हूँ, साबुन की बात करता हूँ, गाड़ियों की बात करता हूँ, टायर की बात करता हूँ, कंप्यूटर की बात करता हूँ, मोबाइल की बात करता हूँ, तो आपके जहन में कौन सा नाम सबसे पहले आता है? अब्बू का नाम सबसे पहले आता है. भाई अब्बू का नाम ही किस ब्रांड का नाम सबसे पहले आता है? ठीक है. जब मैं सर वो होता है ना, जब मैं जूते की बात करता हूँ आपके जहन में सबसे पहले नाम किसका आता है? अब्बू का. तो भाई वो वाले जूते का ब्रांड पूछ रहे हैं. तो सर इसके अंदर हम फीलिंग्स और इमोशंस को भी तो कवर करते हैं ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम आईडीआई कर रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अगर मैं कुकिंग ऑयल का नाम लेता हूँ या कुकिंग ऑयल का नाम लेती हूँ तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? तो वो बोलती हैं कि खाना, खुशबू, इस टाइप के भी तो आंसर्स आते हैं. उसके बाद फिर हम उनको अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव की. अगर क्वालिटेटिव की तरफ हम जाते हैं अभी ब्रांड हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, ब्रांड के अभी हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका टॉप ऑफ माइंड ब्रांड कौन सा है, उस ब्रांड से क्या मेमोरीज ट्रिगर हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे, या ब्रांड एसोसिएशंस की बात कर रही हो, वो अभी राइट नाउ हम बात नहीं कर रहे हैं इस पे. उस पे क्वालिटेटिव पे विल हैव अ सेशन कि इसका जो प्री कॉन्ट जो है या प्री रिक्विजिट जो है वो क्वालिटेटिव है. तो विल हैव टू बेसिकली हैव अ डिस्कशन अराउंड कि क्वालिटेटिव क्या, कब, क्यों, कैसे. अभी हम ये कॉन्ट करके निकल जाएंगे कि होलिस्टिकली आपको Q&A जो करना है वो आपको समझ आ जाए कि Q&A कब किस सिचुएशन में कैसे कैसे किया जाता है या क्या क्या पूछा जाता है. सो कमिंग टू टॉप ऑफ माइंड, जब मैं आपसे मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ आपके जहन में सबसे पहले कौन सा ब्रांड का नाम आता है? और कौन कौन से ब्रांड का आता है? और कौन कौन से ब्रांड? अगर मोबाइल फोन की एग्जांपल उसमें टॉप ऑफ माइंड यूजुअली आईफोन. डजंट मैटर. हाँ, मोस्टली मतलब अवेयरनेस सबसे ज़्यादा आईफोन. बट कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन इन आवर कंट्री, so the relationship between Tom and usage would not be very high. The correlation would be poor between the two. In this particular category, which is an inspirational category, inspirational brands. At one time in point पाकिस्तान में गोल्ड लीफ का टॉप ऑफ माइंड 50% 60% था. टॉप ऑफ माइंड गोल्ड लीफ का 60% था, यूजेज 10% भी नहीं. यू आस्क एनीवन इवन इन रूरल एरिया, जब मैं सिगरेट की बात करता हूँ ताड़े में सैंडविच केड़ा नाम आता है? गोल्ड लीफ. अच्छा तुसी पीते हो तो कैप्सूल पीते हैं, केटू पीते हैं. तो आपको वो इंस्पिरेशन बन जाएंगे आप एज अ ब्रांड. एज अ ब्रांड आप इंस्पिरेशन बन गए. योर टॉप ऑफ माइंड शूट्स यू नो आउट ऑफ रूफ. बट यूजेज में बाय वर्च्यू ऑफ आप इंस्पिरेशन ही, आप आईफोन इंस्पिरेशन ही है. 1.5 लाख मेरी जेब में नहीं पड़े हुए कि मैं 1.5 लाख का आईफोन. आई हैव आईफोन हियर बट the brand is failing to generate the trial because of the price barrier. Clear? तो but generally जब हम FMCG की बात करते हैं, आपने एग्जाम्पल जो दी नॉन FMCG, जब हम FMCG की बात करते हैं जनरली तो FMCG में it works the same way कि जो top of mind है वही आपका correlate highly correlate करता है current usage से, brand use हो सकता है. डायपर्स में भी यही अब तो है क्योंकि मोर और लेस वो एक प्राइस रेंज में आ जाते हैं टॉप ब्रांड्स और लोअर टियर. तो लोअर टियर वाला लोअर टियर ही बता रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई इंस्पिरेशन नहीं है. ठीक है. कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे व्हेन अ ब्रांड बिकम्स द कैटेगरी जेनेरिक. कोई एग्जांपल देंगे? लोग कहते हैं कैन बेबी वाला पैम्पर दे देना. लोगों को डायपर नहीं पता, सर्फ एरियल वाला सर्फ दे देना. उसमें भी होता है कन्वर्जन नूडल्स वाला अक्सर देखा वो कहती है मैगी उठा लें, कहते हैं मैगी हाँ, नहीं है. लोग नॉन नूडल्स को जनरिक यूज करते हैं. तो ये ब्रांड मैगी नूडल कहते हैं. ब्रांड पोजीशनिंग में आ जाएगी ना एक तरीके से. हाँ मतलब वो द ब्रांड बिकम्स सो बिग कि वो कैटेगरी जेनेरिक के तौर पे, लेकिन वो मतलब इवेंचुअली दे लूज द कॉज ना. आप कैटेगरी जेनेरिक बन के
अगर आप जेनेरिक बन के दूसरा ब्रांड ओवरराइड कर रहा है आपके ऊपर, सर्फ, ये एरियल वाला सर्फ दे देना। सर्फ क्या है? वो जो डिटर्जेंट है वो सर्फ रिप्लेसमेंट हो गया। पैम्पर दे देना, कैन बेबी वाला। पैम्पर जो है वो डायपर का रिप्लेसमेंट वर्ड बन गया, ठीक है। बट ब्रांड को कितना फायदा मिल रहा है उसका, दिस इज व्हाट मैटर्स। ओके, तो दो हमने, अब ये और ये मिलाकर, मैं यहाँ से सर से इसलिए समझा रहा हूँ कि एक दफा बैठ जाए जहन में कि हाउ इट वर्क्स। टॉप ऑफ माइंड एंड स्पॉन्टेनियस, अदर स्पॉन्टेनियस, इसके अलावा कौन कौन से ब्रांड आते हैं? जब टॉप ऑफ माइंड का पहला सवाल किया था, सबसे पहले कौन सा नाम आता है? स्पॉन्टेनियस का सवाल क्या होगा? इसके अलावा और कौन कौन से नाम आते हैं? अब नंबर 2, 3, 4, 10, 20 ये सारे स्पॉन्टेनियस है, जो रिस्पोंडेंट खुद से बता रहे हैं। जो भी रिस्पोंडेंट खुद से और नाम बता रहा है अदर्स में, टॉप ऑफ माइंड के बाद वाले जितने मेंशंस हैं वो सारे क्या हैं? स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस, अदर स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस। व्हेन समबडी आस्क यू कि जी टोटल स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस क्या होती है, तो उसके दो हिस्से होते हैं, टॉप ऑफ माइंड एंड अदर स्पॉन्टेनियस। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टोटल स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या यही टोटल अवेयरनेस होती है? नहीं, एडेड को हम एक और क्या लफ्ज यूज करते हैं? prompted awareness. So there are two terms, the aided awareness and prompted awareness. This stays here, the back of the mind. ठीक है? खतरा क्या होता है ब्रांड जब prompted awareness पर होता है? Because उसकी purchase trigger नहीं हो रही होती। आप नाम जानते हैं, prompt किया जाए तो हाँ ये वाला भी तो होता है, हाँ ये वाला भी तो होता है, बट वो आपके एक्टिव इवोक सेट में नहीं है कहीं। सो अगर आप टॉम नहीं है कहीं, तो एक्टिव इवोक सेट में यहाँ पर रहना, यहाँ जाने का मतलब ये है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो रहा है। थोड़े देर से बाद यहाँ से भी प्रॉम्प्ट करने पे भी नहीं आप याद है, ठीक है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये तो हो गई अवेयरनेस। फिर अमंग यूजर्स आपको क्या समझना है कि जी इसमें से कौन कौन से ब्रांड जो आपने सारे बताए, पहले आपने बताया टॉप ऑफ माइंड, फिर आपने बताया कि जी स्पॉन्टेनियस, फिर आपने बताया एडेड। मैंने जो नाम आपने नहीं लिए थे, मैंने आपसे पूछा क्यों मोबाइल को जानते हो? अच्छा वीवो को जानते हो? आपने आईफोन बता दिया, सैमसंग बता दिया और से हुआवे बता दिया। फिर मैं आपसे पूछा क्यों मोबाइल जानते हो? वीवो जानते हो, ट्रेंड जानते हो, फलाना जानते हो, दिस दैट एक्स वाई ज़ेड। ओके, ये सारी अवेयरनेस आ गई। इनमें से कौन कौन से ब्रांड कभी भी यूज किए, एवर यूज्ड, व्हिच मींस यू हैव इंड्यूस्ड अ ट्रायल। मैंने इसमें से सैमसंग यूज किया, आईफोन यूज किया और ओप्पो यूज किया एक दफ़ा, बस उसके अलावा मैंने कोई ब्रांड यूज किया। अच्छा आज ये हमें नॉन एफएमसीजी के एग्जाम्पल में सोप पे आ जाओ। सोप में मैंने लाइफ बॉय भी किया, कैप्री भी किया, एवर यूज्ड है ना, लाइफ बॉय किया, कैप्री किया, तिब्बत भी किया, सेफगार्ड किया, पामोलिव किया, तो 10 ब्रांड हैं जो मैंने यूज किए, ठीक है। अब क्या 10 ब्रांड लेके मैं यूजर का अंदाजा कर सकता हूँ कि किसका यूजर है? नहीं, ये सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है कि ट्रायल किस किस की हो गई। इसमें डिटोल का नाम नहीं है, तो डिटोल वाला कहता है यार मेरा एवर यूज जो है बहुत कम है, इट मीन्स माई प्रॉब्लम इज ट्रायल, माई फर्स्ट। और लोग जानते हैं, प्रॉम्प्टेड अवेयरनेस में मुझे बता रहे हैं यहाँ पे डिटोल सोप होता है, दे रिकग्नाइज मी, इवन दे रिकॉल मी स्पॉन्टेनियसली, बट ओनली 20% पीपल हैव एवर ट्राइड मी, विच मीन्स मेरा ट्रायल का प्रॉब्लम है, लोग ट्रायल पे नहीं आ रहे, मुझे ट्रायल इंड्यूस करना पड़ेगा। जो अवेयरनेस में ही लुढ़क जाता है, ओनली अवेयरनेस इज 20%, दैट मीन्स कि यार लोग मुझे जानते ही नहीं है, तो आगे बात कैसे चलेगी? लेकिन मैं उसको कभी यूज नहीं किया, और लाइकवाइज वैसे कि मैंने इसको कभी यूज किया लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। यूज किए पे देखो, यूजुअली हाउ इट वर्क्स कि आप फनलिंग अप्रोच पे जा रहे होते हो, तो आप जब उसको प्रॉम्प्ट करके दिखा देते हो ब्रांड्स जो उसने नहीं मेंशन किए हुए होते ऑलरेडी स्पॉन्टेनियसली, आप 20 ब्रांड के सेट पे काम कर रहे हो, 25 ब्रांड के सेट पे काम कर रहे हो, तो आप
20 जो उसने बता दिए वो बाकी 30 एक्सपोज कर देते उसको कि भाई ये वाला कभी आपने सुना है ना, ये वाला आप जो उसने बता दिया अब उसी में से पूछते हो कि इन 20 में से कौन सा कभी भी इस्तेमाल किया। सो वो सिचुएशन नहीं हो सकती कि उसने अवेयरनेस में कोई नहीं बताया, यूजेज में बताया, बिकॉज आपके वो सेट से वो हटा देंगे आप। ये जरूर होगा कि ये वाला अवेयरनेस में बताया था लेकिन वो कहता है कि जी कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसमें ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रायल अगर नहीं हुआ है या हुआ है, इन दैट केस नेक्स्ट स्टेप पर हम जाकर पूछते हैं अच्छा पिछले 6 महीने रिसेंसी, पिछले 6 महीने में या पिछले 3 महीने में इनमें से कौन कौन से किए, टू नैरो इट डाउन। तो 10 में से शायद 4 ब्रांड रह जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ अच्छा आजकल कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 ब्रांड रह जाएंगे आउट ऑफ 10। अब एक मेरे से वॉश बेसिन पे रखा हुआ है लक्स, मेरे शावर एरिया में रखा हुआ है वो सेफगार्ड, और ऑफिस में यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे डेटोल फॉर सम रीजन होता है। तो 3 ब्रांड्स हैं जो मैं आजकल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इन 3 में से सबसे ज्यादा आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? That is called Boomo. Brand used most often. Boomo. So Tom याद रखना jargon, top of mind Tom, और Boomo याद रखना jargon, B-U-M-O. Ultimate goal for any brand is to get highest Tom and highest Boomo. बीच की जो सारी कहानी है वो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए स्पॉन्टेनियस बढ़ेगी तो टॉम बढ़ेगी, ट्रायल बढ़ेगा तो करंट यूजरशिप बढ़ेगी, करंट यूजरशिप बढ़ेगी तो बूमो बढ़ेगा, ठीक है। Sir, is it necessary for a leader to be at Tom and Tom और Boomo पे दोनों टॉप पे हो ब्रांड अगर वो कैटेगरी लीडर है, ये बात नहीं। In 90% cases I would say it is the case. तो मार्केट शेयर बोमो से आपका शो ड्राइव जो बीएसटी में आपका मार्केट शेयर ड्राइव होता है वो बोमो से ही होता मैं है। वही बता रहा हूँ कि correlation between Boomo and Tom is specifically in FMCG is very high, where there is no inspirational brand as such. गाड़ियों में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि करंट यूजरशिप आपको मिलेगी सुजुकी ऑल्टो की सबसे ज़्यादा, और शायद मेंशंस में आपको किया, स्पोर्टेज या सिविक या सिटी, इस तरह के मेंशंस आपको टॉप ऑफ माइंड में ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स। FMCG में यूजुअली when it comes to biscuit, your Boomo correlates very strongly with your Tom. Cake, tea, CSD, जो भी आपके ब्रांड टॉम में आ रहे होते हैं वही ब्रांड मोस्ट लाइकली आपके Boomo For में example, loyalty और retention का। लॉयल्टी और रिटेंशन के कुछ और, हाँ कुछ और ये भी हिस्सा होते हैं उसका, लॉयल्टी के मेजर्स में से हैं ये। लास्ट जो आप ऐड करते हैं इसमें रिस्पोंडेंट को मजीद थकाने के लिए वो ये मेजरिंग, इट इज किलिंग। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि when you talk to you work as a consultant, you tell your client, look, please do not go for a straight kill. आप 30 जुमले पूछेंगे एटीट्यूड के, 30 जुमले पढ़ेंगे उस पर अग्री डिसएग्री करवाएंगे। ये सारे सवाल आप ऑलरेडी पूछ चुके होंगे, शॉपिंग प्रोफाइल और कंजम्पशन, बीटा मॉडल, व्हाट नॉट, फिर ब्रांड इमेज, ब्रांड अवेयरनेस, यूजेज की सारी रीजंस फॉर नॉट कंज्यूमिंग, रीजंस फॉर कंज्यूमिंग। ये सब करने के बाद आखिर में कहेंगे यार अब 30 जुमले और हैं जो मैं ब्रांड के बारे में मेजरली पूछूंगा। ये वो वाहिद ब्रांड है, ये आला तरीन ब्रांड है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और हर जुमला पढ़ने के बाद आप कहेंगे इन जो वेयर सेट है, वो सेट है उसका, इसमें से किस किस ब्रांड के लिए जुमला सही है। तो एसोसिएशन कहलाती है, ब्रांड एसोसिएशन। अब ये ब्रांड एसोसिएशन के एवर यूज वाले ब्रांड्स या वो अवेयर, टोटल अवेयर ब्रांड सामने रख देते हैं उसके, टोटल अवेयर ब्रांड, और एक एक जुमला पढ़ते हैं कि इसमें से ये किसके लिए सही है, ये किसके लिए सही है, ये किसके लिए सही है, ये किसके लिए सही है। तो जब ये मजीद जुल्म होता है उस बेचारे पर, तो लेंथ ऑफ इंटरव्यू पहुंच चुकी होती है 1 सवा घंटे के ऊपर। दिस इज वेयर आपका इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट दोनों चीट करने की कोशिश करते हैं, यार वर्ता चला। तो सही Q&A यहाँ तक रुक जाएगी। Do not go for brand. Do not go for brand image. It's a separate study. Brand health and image study is a separate study. ठीक है? But
अगेन जो आपके क्लाइंट्स हैं मेजॉरिटी, वो यही इंसिस्ट करते हैं कि दोनों चीज़ें आपके यूएनए का हिस्सा होंगी। फॉर दैट आप करते हैं कि इस पार्ट में से कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस दी लेंथ ऑफ द इंटरव्यू। यू कैन नॉट एक्सीड 50 मिनट्स ऑफ द लेंथ, सो यू ट्राई टू बैलेंस इट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप इसके साथ ऐड कर लेते हैं, जनरली स्पीकिंग, and that's basically, I think, handle this overload. You can find various examples of UNA questionnaires within the repositories. So talk to your team leads, they will help you with that. Review some of the questionnaires, ask yourself why this question is being asked and why this question is not being asked. So Shiraz, probably what you can do is to provide them a UNA questionnaire. You have done it for biscuits, right? तो बिस्किट का एक UNA हुआ था, वो लें। एक जीशान के डोमेन में बैंक का हुआ था, वो लीजिए। दोनों क्वेश्चन लेके होमवर्क इज सिंपल। आपने इस मैप के अगेंस्ट you basically try to identify what is being covered in this questionnaire and what is not. So just put these things in Excel, write biscuit UNA and start writing yes, no, yes, no, yes, no. ठीक है। जो मिसिंग हो तो उसकी कोई डिटेल लिखनी हो, वो लिख दें कि ये इस तरह पूछा जा सकता था, या ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ नहीं मिसिंग है, ठीक है। Then we'll take it from there. Okay? Thank you. हाँ जी, अब ये जो मैं इसका जो फॉलो अप नेक्स्ट क्लास है, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बातें हम बीच में ही करते रहें कि कैसे यूएनए इस्तेमाल होगा, बट असल जो मज़ेदार चीज़ शुरू होगी अब कि ये कहाँ इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी। देखें, आप कोई सी भी ना वेबसाइट पे जाएं, लिखिए यूसेज एंड एप्टीट्यूड स्टडी, ये सारा ज्ञान आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ज्ञान वो नहीं है, ये सिर्फ प्रीएम्बल था यहाँ पहुँचने के लिए। आज की जो सेशन था, ये सेशन था प्रीएम्बल टू दिस सेक्शन, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। कोई और सवाल है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। Anyone? सर, एट टाइम्स जो हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होता, हम उसे उसी के राइवल के प्रोडक्ट से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो सर वो कहाँ फॉल करेगा? लाइक आपने जैसे अवेयरनेस वाली बात, जहाँ रिस्पोंडेंट बताएगा वही। जैसे कि आपने अवेयरनेस वाली मैं नेशनल अचार इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मेरे जहन में नेशनल अचार आता है, मैं नेशनल अचार इस्तेमाल करता हूँ। मेरा करंट यूज़ भी है, ट्रायल भी मैंने किया था, मेरा करंट यूज़ भी है, मेरा घूमो भी है। जब पेंट्री चेक करके निकालता हूँ तो पता चलता है कि वो मेहरान अचार की बोतल है, लेकिन कंज्यूमर जो कह रहा है परसेप्शनली मैं उसी पे स्टिक करूँगा। तो सर फिर मेहरान कहाँ स्टैंड करेगा इसमें? मतलब ऑल्दो उसने बताया कि वो नेशनल यूज़ करता है, बट वो यूज़ मेहरान करता, और वो जो भी पॉइंट्स बता रहा था नेशनल दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। कुछ तो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं ना आपके रिजल्ट्स में, एरर मार्जिन प्लस माइनस 5% एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारा आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा, नहीं भी तो ये भी डिस्कस कर लेंगे समझे। बट दिस इज नॉन सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर। आपको पता है कि आप पूछेंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो कहेगा 50,000, उसकी 5,000 मिलेगी। ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं जो 2-4-5% में आपको मिलेंगे। यू हैव टू लिव विद दैट। सर अगर किसी ब्रांड का यही कंसर्न हो कि हाँ, मतलब तो मेरा यही कंसर्न जब अगर ये इनफैक्ट हमने एक स्टडी की, और ये स्टडी करके हमने कहा कि जी आपका टॉप ऑफ माइंड जो है वो सिर्फ 7% था या 10% था, और आपकी जो करंट यूज़रशिप थी, क्लेम्ड यूज़रशिप थी,
वो सिर्फ जो है वो 15% थी, लेकिन जब हमने पेंट्री चेक किया तो आपकी प्रेजेंस इन दी हाउस होल्ड वॉज अबव 50%. So you have actually become a generic. People use you but they don't recognize that they are using you. So what you need to do is to connect your brand or revive your brand image or brand name in their mind also. So माइंड स्पेस में नहीं है, जेनेरिक बन गए हैं, वो समझ रहे हैं कि वो सर्फ यूज़ कर रहे हैं बट वो एक्चुअली एरियल यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं सर्फ यूज़ कर रहा हूँ बट एक्चुअली वो एरियल यूज़ कर रहे हैं. अगर हम उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं जो डिग्रेशन वगैरह में होता है, तो वो भी तो फेल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दैट. जैसे हम लोग जैसे रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं वैसे तो थोड़ा बहुत हमने जो यूनिवर्सिटी सीखा है उससे मुझे याद आ रहा है. तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर हम नहीं लिख रहे ये वाली चीज़, जैसे मेहरान का यूज़ कर रहे हैं तो उसने कहा शांत, हमने शांत कर दिया, हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि मेहरान के बाद अभी रिजल्ट में रन नहीं किया तो इम्पैक्ट भी पड़ेगा, रिजल्ट को फील नहीं होगा. तो एक स्पेसिफिक देखो, एक तो ये कि मैं कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ये सबसे पहले याद रखो, रिग्रेशन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस एग्जाम्पल. ठीक है, कहाँ यूज़ होती है और कैसे होती है विल लेट यू नो. इसके लिए इट्स नॉट रेलेवेंट हियर कि कोई भी किसी भी टाइप का एनालिसिस हम रन कर रहे हैं. इसके लिए इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वर्सेस क्या मैंने देखा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं. इफ़ देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट आई हैव टू इन्फॉर्म क्लाइंट कि यू आर बीइंग यू आर बीइंग विक्टिम ऑफ बीइंग अ जेनेरिक. आपकी ब्रांड जो आइडेंटिटी है इट्स लॉस्ट. ठीक है, ये किसका बच्चा है? वो किसी का बच्चा नहीं. ठीक है, तो किसी का बच्चा नहीं है तो कोई भी हाथ पकड़ के उसको ले जाएगा वर्सेस आप कहेंगे हाँ जी ये अब्दुल रशीद साहब का बच्चा है, वो जगह पर पहुँच जाएगा. सर मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम लोगों ने रिसर्च स्टडी की थी वहाँ पे सॉस में सीपी का, जहाँ पे हमें जो ना डिश वॉश बार्स में दो बार्स आती है, एक ग्रीन बार आती है एक येलो बार आती है, मैक्स और लेमन मैक्स. तो लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे, हमें यूजर्स चाहिए थे लेमन मैक्स के येलो बार वाले, लेकिन लोग जो आए थे वो आए थे ग्रीन बार वाले. तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये क्लाइंट ही इटसेल्फ फीडबैक था कि वो अपनी ही कैनिबलाइज कर रहे थे प्रोडक्ट को. तो ये कन्फ्यूजन आती है. और भी तो सर ने बात बताई होती है, एक बहुत बड़ी रीज़न है. अभी हम लोगों ने एनएफएल की जो काम किया उसमें ये था कि आखिर में जब हम पेट्री चेक कर रहे थे, बंदा नेशनल बुलेट और मॉडल मेहरान ही दिखा. एग्जैक्टली. उसमें हमारे इंटरव्यूअर ने उससे पूछा भी था कि यार आप तो अब तक उसका एनएफएल बता रहे थे, आप ये मेहरान कहने यार अच्छा वो यूज़र में एनएफएल ही हूँ, लेकिन भाई इस बार मुझे मिला नहीं. तो ये हम लोगों ने लिख भी लिया अपने पास, मिल नहीं जाता तो मैं मतलब देयर कुड बी, ये सारा मैंने क्या कहा, नॉन सैम्पलिंग एरर. देयर आर थिंग्स दैट यू कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स दैट यू कांट. अच्छा, जाहिर सी बात है कि कोई फिनोमेना अगर इतना ओवरवेलमिंग हो जाए कि 100% घरों में अगर यही फिनोमेना हो जाएगा तो फिर तो आपके हाँ, लेकिन यूजुअली इस तरह के आउटकास्टेड जो आउटलायर्स हैं वो 4-5% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करते. हेंस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स रिमेन यूजेबल. राइट, 5% सैम्पलिंग एरर जो बस सैम्पलिंग एरर के साथ नॉन सैम्पलिंग एरर और डिज़ाइन इफेक्ट वगैरह मिला लें तो इतना होता है. तो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. ये बता ये